Hello students, myself Bafna ma'am. Today we will be continuing the video of now what are the consequences of dissolution. Last video we had dealt about modes of dissolution, that is a dissolution of a partnership, what was the mode, and on following grounds the court can dissolve the said firm. The proper ground should be there. So we had discussed about the following grounds, and today we will be discussing about the consequences of dissolution. See, what are the consequences of dissolution? Now, what is the consequences? The partnership business will not automatically come to an end on the dissolution of a firm in question. See, a partnership business firm, it will not come to an end automatically on the dissolution of a firm. Actually, dissolution is the beginning of the process. See, when you want to dissolve any firm, that is a beginning of the process to bring an end to the life of the firm concerned. See, the firm comes to an end, it is only a beginning process. See, the completion of the dissolution process will result into the winding up of the firm. See, when there will be a winding of the firm, then that is the completion of dissolution. So, first it is a public notice will be required when this process is to be initiated. See, when you want to dissolve the firm, public notice should be given. After the firm is dissolved, a firm's business is wound up. सी अभी फर्म डिसॉल्व हो गया है तो फर्म का जो बिजनेस है उसको तो वाउंड अप करना पड़ेगा ना, and the proceeds that accrue out of it are required to be distributed among the partners. अभी आगे बढ़ेंगे तो दैट जो भी कुछ प्रॉफिट है, कुछ लेना देना है, जो बाहर का कुछ है, तो it should be distributed among the partners. So the consequences of dissolution are discussed below. So we will discuss here what are the consequences. First is public notice and liability for acts done by the partners after dissolution. Now, public notice and liabilities for the act done by the partners. What is that? Giving public notice of dissolution is the first step. The first step is you have to give a public notice इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन. जब प्रोसेस हो रहा है डिसोल्यूशन तो पब्लिक नोटिस देना बहुत ज़रूरी है. दिस इज नेसेसरी बिकॉज पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ ए फर्म इवन आफ्टर इज डिसोल्यूशन. सो अगर आपने नोटिस नहीं दिया है तो पार्टनर्स लायबल होंगे, डिसोल्यूशन के बाद भी लायबल होंगे टिल पब्लिक नोटिस इज गिवन. The public notice may be given by a partnership firm or any partner. या तो वो partnership firm में से कोई भी partner दे सकता है public notice. It has been held that in the case of old customer, individual intimation of the fact of dissolution would be necessary in addition to public notice. ओके एक अभी केस है मंजुनाथ नायक वर्सेस उल्लाल दयानंदा हनुमंत नायक. सी यहाँ पे एक क्या है, a public notice under the provision of this act is given by the notice to the registrar of the firm. So section 63 provides that and by publication in official gazette and in at least one vernacular newspaper circulating in the district. Okay, ए प्रोविजन क्या बोलता है कि नोटिस आप देते हैं तो रजिस्ट्रार को देना है फर्स्ट ऑफिशियल गेजेट, पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट, आपको पब्लिकेशन देना ऑफिशियल गेजेट में. एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर यानी एटलीस्ट एक लोकल न्यूज़पेपर में आपको एक नोटिस देना है कि भाई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है. वो कहाँ पे सर्कुलेट होगा, वो न्यूज़पेपर एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट होना चाहिए. वेयर द फर्म इज to which it relates has its place, जो फर्म वहाँ पे स्थित है जिस प्लेस में, और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी जो प्रिंसिपल प्लेस है, जो बिजनेस चल रहा है उस एरिया में न्यूज़पेपर जाना चाहिए. इफ द फर्म इज अनरजिस्टर्ड, अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है देन नो नोटिस टू द रजिस्ट्रार इज नॉट नेसेसरी. रजिस्ट्रार को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, बट पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट एंड न्यूज़पेपर इज रिक्वायर्ड. तो पब्लिकेशन ऑफिशियल गेजेट में और न्यूज़पेपर में देना ज़रूरी है कि भाई पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन में हो रहा है करके.
Okay, this is the first. However, the estate of the partner who is dead, अगर पार्टनर डेड है या फिर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, और ए रिटायरिंग पार्टनर हु वॉज नॉट नोन टू द आउटसाइडर, अगर उसमें ये तीनों में से आउटसाइडर यानी जो बाहर के व्यक्ति मालूम ही नहीं है कि भाई ये कौन पार्टनर है, या पार्टनर मर गया है, या पार्टनर इंसॉल्वेंट है, या कुछ रिटायर हो गया है, तो आउटसाइडर को किसी को मालूम ही नहीं ये पार्टनर भी कुछ, इस पार्टनर का भी, इस इंसान को भी कुछ रोल है पार्टनर का, आउटसाइडर पार्टनर ऑफ द गिवन फर्म, देन ही इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म. ही विल नॉट बी लायबल, वो लायबल नहीं होगा जो भी कुछ एक्ट हो रहा है फर्म में आफ्टर द डेट ऑन विच ही सीजेस टू बी ए पार्टनर. तो उसको इतना नोटिस या फिर लोकल न्यूज़पेपर में देने की ज़रूरत नहीं है. बस एक बोल देने से, या तो वर्ड्सली या एक्सप्रेसली, इफ ही टेल्स दैट आई नाउ फ्रॉम टुडे आई सीजेस टू बी ए पार्टनर, देन दैट इज मोर देन एनफ. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस. द सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस, द राइट ऑफ द पार्टनर टू डिमांड वाइंडिंग अप. यहाँ पे राइट क्या है? राइट ऑफ द पार्टनर टू डिमांड वाइंडिंग अप. सी, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, अगर फर्म डिसॉल्व हो जाता है, एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स इज एंटाइटल एज अगेंस्ट ऑल द अदर पार्टनर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स to have the property of the firm applied in payment of the debts and liabilities of the firm, and to have the surplus distributed amongst the partner or their representatives according to their rights. See, अभी कोई पार्टनर डिमांड करता है वाइंडिंग अप, तो उस डिसोल्यूशन में क्या होता है, तो जो एवरी पार्टनर है या उसका रिप्रेजेंटेटिव है, ही इज एंटाइटल अगेंस्ट ऑल अदर पार्टनर्स. जो दूसरे कोई पार्टनर्स है या फिर वो पार्टनर्स के रिप्रेजेंटेटिव है, तो ही इज एंटाइटल, ही हैज द राइट टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. ओके, फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म. या तो पेमेंट्स किसी को देना है या लाइबिलिटीज है फर्म में, तो ही हैज द राइट. एंड वॉट एवर द सरप्लस इज देयर इन द फर्म, या कुछ सरप्लस है तो दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स. यानी कोई भी सरप्लस है, जो कोई गुड्स है, जो कोई कैपिटल है, दैट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. तो अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स दो सरप्लस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. अपने अपने रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. तो सेकेंड पॉइंट ए है. नो, दिस इज द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप. सी, व्हाट इज कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स? See, with the beginning of the dissolution process, the authority of partners to do ordinary act of the firm will not immediately come to an end. See, beginning of dissolution process है ये. The authority of the partners to do ordinary act, जो कोई authority है partners की जो ordinary act है firm का, will not immediately come to an end. वो immediately end में नहीं आ सकता है, क्योंकि द पार्टनर्स अथॉरिटी टू एक्ट फॉर ए फर्म एंड टू बाइंड देयर को पार्टनर्स कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर टू पर्पस में द अथॉरिटी ऑफ द फर्म विल बाइंड टू देयर को पार्टनर्स. अभी टू पर्पस क्या है? सो फार एज इट इज नेसेसरी टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ द फर्म एंड टू कंप्लीट ट्रांजैक्शंस बिगिन but not finished at the time of the dissolution. So the continuing authority includes disposing of the property, settling the debts and creditors, etc. अभी continuing authority of the partners for the purpose of winding up. तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है डिसोल्यूशन का? तो इसका ये मतलब नहीं है द पार्टनर्स अथॉरिटी टू एक्ट फॉर ए फर्म एंड टू बाइंड देयर को पार्टनर्स कंटिन्यू. इट विल कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर द टू पर्पस. जब तक जो नेसेसरी अफेयर्स है फर्म का और कंप्लीट ट्रांजैक्शन जो फिनिश नहीं हुआ है अभी तक, तब तक वो कंटिन्यू करते रहेंगे. अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ वो कंटिन्यू होता ही रहेगा.
So continuing authority includes disposing of the property, settling with the debts and creditors, etc. तो अथॉरिटी पार्टनर्स के पास तो रहेगी और वो कंटिन्यू होती रहेगी जब तक फुल सेटलमेंट नहीं हो जाता अकाउंट्स का. ओके. द फोर्थ है liabilities of share personal profit. Liability to share personal profit. If during the process of winding up, any partner makes any profit, he must share it with the other partners. That is neat, clean, clear. The fifth point is right to demand back premium. See, where a partner has paid a premium on entering into a partnership for a fixed term. See, if a partner has paid, any person has paid a premium, अगर उसने प्रीमियम दिया है, he has paid a premium on entering into a partnership, जब वो पार्टनरशिप में एंटर किया था उसने, तो उसने प्रीमियम पे किया था फॉर अ फिक्स टर्म के लिए, एंड द गिवन फर्म इज डिजॉल्व्ड. अगर वो फर्म डिजॉल्व हो गया है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, बिफोर एक्सपायरी वो फर्म डिजॉल्व हो गया है, अदरवाइज देन बाय द डेथ ऑफ ए पार्टनर, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, ही शैल बी एंटाइटल टू रीपेमेंट ऑफ द प्रीमियम. तो वो एंटाइटल होगा रीपेमेंट ऑफ द प्रीमियम, जो प्रीमियम उसने भरा है वो रीपेमेंट होगा, और ऑफ सच पार्ट देयर ऑफ एज मे बी रीजनेबल. सी, बट नो रिफंड विल बी मेड टू ए पार्टनर. पार्टनर को रिपेमेंट कब नहीं दिया जाएगा? इफ द फर्म वॉज नॉट कंस्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स टर्म. अगर वो फर्म फिक्स्ड टर्म के लिए कंस्टिट्यूटेड नहीं था, यानी फिक्स टर्म के लिए वो फर्म चालू नहीं किया गया था. इफ द फर्म इज डिजॉल्व ड्यू टू द डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर वो फर्म डिजॉल्व किस लिए हो गया है? पार्टनर डेथ ऑफ द पार्टनर की वजह से डिजॉल्व हो गया है, या इफ द डिसोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू द मिसकंडक्ट ऑफ द पार्टनर पेइंग प्रीमियम, या कुछ ही सब मिसकंडक्ट हो गया है पार्टनर से, और if the dissolution is in pursuance of if the dissolution is in pursuance of an agreement between the partners which contains no provision for the refund of the whole or any part of the premium. So a provision में there will be no return of the premium to the partner. Okay, so right to demand back premium will be only when there is an option, when there is an agreement, when there is an given firm is dissolved before the expiry of the term, या फिर डेथ ऑफ द पार्टनर, then he shall be entitled to repayment of the premium, and there will be no repayment will be made to a partner in this provision, this four clauses में. सिक्स्थ पॉइंट है sixth point is rights where partnership contract is rescinded for fraud or misrepresentation. So section 52, what does it tell? See, where a contract creating partnership is rescinded on the ground of fraud. कॉन्ट्रैक्ट जब क्रिएट हुआ है पार्टनरशिप इज कैंसल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, उसमें पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है. ऑफ एनी पार्टीज देयर टू, कोई भी पार्टी ने फ्रॉड किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, द पार्टी एंटाइटल्ड टू रिसाइंड इज विदाउट द प्रिजुडाइज टू एनी अदर राइट एंटाइटल. सो द पार्टी इज एंटाइटल्ड टू कैंसल इट, टू लीन ऑन or a right of retention of the surplus or the assets of the firm remaining after the debt of the firm have been paid, for any sum paid by him for the purchase of a share in the firm and for any capital contributed to him. The rights where partnership contract is rescinded for the fraud or misrepresentation, agar to lean on a right of retention of a surplus, यानी रिटेंशन किया है, सरप्लस तो इतना सारा था तो उसने रिटेन किया है, या फिर और द असेट्स ऑफ द फर्म रिमेनिंग आफ्टर द डेट्स ऑफ द फर्म हैव बीन पेड फॉर एनी सम पेड बाय हिम फॉर द परचेज ऑफ द शेयर इन द फर्म एंड फॉर एनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिम
to rank as a creditor of the firm in respect of any payment made by him towards the debts of the firm, and to be indemnified by the partner or partner guilty of the fraud or misrepresentation against all the debts of the firm. Okay, here we will see here these rights where partnership contract is rescinded for fraud and misrepresentation. See, if these three are there, if these three subsections are there, then the partnership contract is cancelled. For what reason? For fraud or misrepresentation. We will see a detailed explanation in the next video. It will come in the next video. So we will take next here, right to refrain from use of firm name or firm property. See, after a firm is dissolved, every partner or his representative may, in absence of a contract between the partners to the contrary, restrain any other partner or his representative from carrying on a similar business. See, here there is a right to restrain from use of the firm's name or firm property. When a firm is dissolved, every partner or his representative, in absence of contract, there is no contract between the partners. So every partner or his representative may restrain other partner or their representative. They may restrain the partners from carrying on a similar business. कि भाई आप similar business carry नहीं कर सकते हो firm dissolve होने पर. In the firm's name, firm के नाम पे आप business नहीं करोगे. और from using any of the property of the firm for his own benefit, या firm की property use नहीं करोगे आप अपने benefit के लिए. Until the affairs of the said firm have been completely wound up. जब तक अपने फर्म का कंप्लीट अफेयर्स जो है, कुछ भी मैटर है, कंप्लीटली वाउंड अप नहीं हो जब तक नहीं होता है तब तक आप बिजनेस कैरी नहीं करोगे और फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं करोगे. ओके, सो देयर इज अ राइट टू रेस्ट्रेन फ्रॉम द यूज ऑफ द फर्म्स नेम और द फर्म प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज राइट टू मेक अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड. See, partners may, upon or in anticipation of dissolution of a firm, make an agreement. पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करना है तो पार्टनर्स एक अग्रीमेंट कर सकते हैं that some or all of them will not carry on a business similar to that of the firm. That some or all of them, या तो थोड़े लोग या सब लोग मिलके कैरी नहीं करेंगे बिजनेस जो फर्म का बिजनेस था फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड और विद इन ए स्पेसिफाइड लोकल लिमिट. जितने लोकल लिमिट है उतने तब तक आप बिजनेस कैरी नहीं करोगे, फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं करोगे. Notwithstanding anything contained in sections 27 of Indian Contract Act 1872, such agreement shall be valid. वो agreement valid होगा if the restriction imposed are reasonable. अगर वो restriction जो impose किया है वो reasonable होना चाहिए. एकदम सख्ती से कानून लागू होता है वैसा नहीं होना चाहिए. But there should be reasonable restriction must be imposed. Okay? This is the rights which are given. These are the consequences of the dissolution. Okay, now we will see settlements of account upon dissolution. What will happen about the settlements of account upon dissolution? See, if the deed of the partnership does not contain account clause as to how the final accounts of the partner of the firm are required to be settled, the provision of section 48 will apply here. See, if there is no deed of the partnership that how accounts have to be settled properly, then section, and if the clause is not mentioned in that agreement, section 48 will apply. Now, what is the section 48? We will see mode of settlement of account between the partners. In settling the account of a firm after dissolution, the following rules shall, subject to agreement by the partners, be observed. Losses. First, we have to see the losses.
इट शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है वो उसमें से आपको देना पड़ेगा. नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, जो आपके कैपिटल बचता है उसमें से देना पड़ेगा. एंड लास्टली इफ नेसेसरी बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द प्रपोर्शन इन विच दे वर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स, या पार्टनर्स इंडिविजुअली जो उनका जो प्रपोर्शन है, जो उनका शेयर है प्रॉफिट्स का है प्रपोर्शन में, तो दे हैव टू पे द लॉसेस. नेक्स्ट इज द असेसमेंट ऑफ द फर्म, द असेट्स ऑफ द फर्म. अभी अकाउंट्स को सेटल कैसे करेंगे, असेट्स ऑफ द फर्म, लॉसेस को कैसे पे किया है उसमें है द असेट्स ऑफ द फर्म including any sum contributed by the partners to make up deficiency of capital shall be applied in the following manner and order. See, here in paying the debts of the firm to the third parties, यहाँ पे पे करना है डेट्स को थर्ड पार्टीज को. in paying to each partner ratably what is due to him from the firm for advances as distinguished from capital. Okay. In paying to each partner ratably what is due to him on account of capital, and the residue, if any, shall be divided among the partners in the proportion in which they were entitled to share profits. Okay? So, the asset of the firm, including any sum contributed by the partners to make up the deficiency of capital. See here, the deficiency of the capital shall be applied for the following manner and order. See, if there is any sum contributed by the partners, because the contribution of the partners was if there is any deficiency in capital, and that shall be applied in the following manner and order. When अभी कुछ पार्टनरशिप में फर्म में बिजनेस में कुछ लॉसेस होता है, फर्म नहीं चल रही है, तो अगर वो लॉस में चल रहा है तो फर्स्ट मैंने बोला था फर्स्ट प्रॉफिट इट शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट में से निकाल के देना पड़ेगा. अगर प्रॉफिट में नहीं बचता है तो कैपिटल में से, सेकेंड कैपिटल में से निकाल के देने पड़ेगा. लास्टली इफ नेसेसरी the partners individually in proportion in which they were entitled to share profit, individually जो proportion है, जो share है, उनमें से निकाल के देना पड़ेगा बाहर का जो debts है. अभी next है assets of the firm. अभी जिस पार्टनर ने contribution किया है तो deficiency, capital की deficiency है, तो उसको किस following manner में apply करेंगे. First, in paying the debts of the firm to the third parties, जो भी कोई डेट्स है फर्म का, थर्ड पार्टी को फर्स्ट, जो फर्म का जो थर्ड पार्टी है, यानी जो फर्म है जो थर्ड पार्टी है उसको पे करेंगे फर्स्ट. तो कभी भी पार्टनरशिप में ये रूल होता है, तो कोई भी डेट्स पे करना है फर्म का तो पहले थर्ड पार्टी को पे करेंगे. और नेक्स्ट, इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली यानी प्रपोर्शन में, विच इज़ ड्यू टू हिम फ्रॉम हिम फर्म फॉर एडवांसेस, यानी मान लीजिए किसी तीन पार्टनर में से एक पार्टनर ने लोन लिया है तो उस पार्टनर को फर्स्ट दिया जाएगा, यानी जो कुछ पैसा है वो उस पार्टनर को दिया जाएगा जिसने लोन दिया था फर्म को, उस पार्टनर को प्रपोर्शन से दिया जाएगा. मतलब डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल से जो दूसरा है वो लोन उसको पे किया जाएगा. और मान लीजिए थर्ड इंस्टेंट में अगर उसमें भी पैसा बच गया तो उसी प्रपोर्शन से कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. इन पेइंग ईच पार्टनर रेटेबली यानी प्रपोर्शन से व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. और मान लीजिए उसमें भी और पैसा है तो द रेसिड्यू इफ एनी दैट शैल बी डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स. The residue, if any, that shall be divided among the partners in the proportion in which they were entitled to share profit. So it will be divided among the partners in proportion they were entitled to share the profit. So जो profits उनको share करना है उसी proportion से उनको divide किया जाएगा.
सो द एसेट्स ऑफ द फर्म, लॉसेस हम लोगों ने देखा, द एसेट्स ऑफ द फर्म. नाउ नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ द फर्म डेट्स एंड सेपरेट डेट्स. अगर पेमेंट ऑफ द फर्म उसका कुछ डेट्स है तो क्या होगा, वेयर देर आर जॉइंट डेट्स ड्यू फ्रॉम फर्म. अगर जॉइंट में से डेट्स है, मान लीजिए ए बी सी, ए जॉइंट डेट्स है फर्म का, तीनों का, एंड ऑल्सो सेपरेट डेट्स ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर. मान लीजिए अभी ए बी सी, ए इन लोगों का सेपरेट डेट्स है. द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म कंसर्न्ड शैल बी अप्लाइड. तो जो प्रॉपर्टी है ऑफ द फर्म है, जो प्रॉपर्टी है फर्म की, तो उसमें फर्स्ट अप्लाई किया जाएगा. द शेयर ऑफ द ईच पार्टनर शैल बी अप्लाइड. तो फर्स्ट इंस्टेंस में क्या होगा, द पेमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ द फर्म. तो जो पेमेंट है डेट्स का, जो पेमेंट है जो फर्म है, इन द फर्स्ट इंस्टेंस द पेमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ द फर्म, यानी जो पेमेंट है डेट्स है फर्म का, तो वो पे करेंगे. और उसमें इफ देयर इज एनी सरप्लस देन द शेयर ऑफ द ईच पार्टनर शैल बी अप्लाइड इन द पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेट्स. तो शेयर है जो ईच पार्टनर का, दैट विल बी अप्लाइड इन द पेमेंट, यानी जो अलग अलग शेयर है पार्टनर्स का, तो वो रिपे करेंगे सेपरेट डेट्स, सेपरेट पेमेंट और पे टू हिम. मान लीजिए अभी सेपरेट प्रॉपर्टी है पार्टनर्स की, द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट. अगर इन लोगों के अगर कुछ सेपरेट डेट्स है तो पहले इन लोगों का जो डेट्स है वो क्लियर करेंगे वो लोग. बाद में जो कोई फर्म का डेट्स है बाद में वो क्लियर करेंगे. ओके, इन केस ऑफ द सेपरेट डेट्स द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेट्स एंड द सरप्लस इफ एनी द पेमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ द सेट फर्म. तो जो पेमेंट है सेट फर्म का वो पे करेंगे. ओके, तो एज जिस हिसाब से अगर पेमेंट ऑफ द फर्म का डेट्स है तो फर्स्ट उसका, अगर सेपरेट डेट्स है तो उसके हिसाब से वो पे करेंगे. ओके, तो नाउ नेक्स्ट इज प्रोविजन. व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटिंग टू द सेल ऑफ द गुडविल ऑन डिसोल्यूशन. अभी डिसोल्यूशन में जो सेल ऑफ गुडविल है उसका क्या होगा. See, अगर तो the provision of section 55 relating to the sale of goodwill on dissolution of a firm are as under, while settling the accounts of a firm after dissolution. जब भी सेटल करते हैं अकाउंट्स ऑफ ए फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन, गुडविल शेल सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. जो गुडविल रहेगा, यानी अभी गुडविल का जो फर्म का नाम रहता है उसको गुडविल बोलते हैं. अगर फर्म का नाम बहुत अच्छा है, मान लीजिए अभी फर्म का नाम डी मार्ट है आपका, तो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स बी इंक्लूडेड इन द असेट. तो असेट में आएगा, वो फर्म भी असेट में आएगा. एंड इट मे बी सोल्ड आइदर सेपरेटली, तो वो फर्म का नाम सेपरेटली बेचेंगे और अलॉन्ग विथ द अदर प्रॉपर्टी, या फिर वो प्रॉपर्टी के साथ बेचेंगे. ओके, ऑफ द सेट पार्टनरशिप फर्म. सो the next point is here, where the goodwill of a firm is sold after dissolution of a firm. अगर goodwill बेचा है firm का dissolution के बाद, a partner में carry on any business. जिस किसी ने खरीदा है, the partner में carry on any business competing with that of buyer. So a partner may carry on any business competing with that of a buyer and he may advertise such a business. तो वो advertise भी कर सकता है such a business. However, subject to an agreement between him and the buyer. तो agreement between him and the buyer, it should be the subject. He may not use the firm's name, but वो firm का name use नहीं करेगा. Represent himself as carrying on the business of the firm. He is not going to represent himself that he is carrying on the business of the firm or solicit the customers and persons who were dealing with the firm before the dissolution of the firm. Okay? Here, अगर फर्म गुडविल जो गुडविल है फर्म का सोल्ड हो गया आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होने के बाद जो गुडविल था
वो बेच दिया गया, तो ए पार्टनर में कैरी ऑन, जो भी कोई पार्टनर है, ही में कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ ए बायर. It is clear now? He may advertise such business. However, subject to agreement, it is being clearly told it should be a subject to agreement between him and the buyer. So he may not use, now the goodwill have been sold. So he will not be using the firm's name and represent himself that he is carrying on the business of the firm. ओके तो अभी वो बिजनेस कैरी नहीं कर रहा है उस फर्म का, वो तो गुडविल सोल्ड किया गया है अभी तो. और सॉलिसिट द कस्टमर एंड पर्सन, वो सॉलिसिट नहीं करेगा कस्टमर और पर्सन को हु वर डीलिंग विद द फर्म. जो पहले फर्म में डील कर रहा था, ही इज नॉट गोइंग टू सॉलिसिट विद द कस्टमर एंड द पर्सन बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म. बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, तो अभी वो खुद को ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं उस फर्म से काम कर रहा हूँ, उस फर्म से मैं बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूँ. अभी वो गुडविल बेच दी गई, मान लीजिए वो सेम बिजनेस भी कर रहा है, लेकिन बट ही विल नॉट यूज द फर्म्स नेम, दैट इज हिज टोटल सेपरेट एंटिटी एंड टोटल डिफरेंट फ्रॉम द फर्म. नो, ही इज यूजिंग हिज ओन बिजनेस. No, he is not going to represent that he is using the firm's name. He is doing the business of that firm. Okay. And third point is here, any partner upon the sale of goodwill of a firm may enter into an agreement with the buyer. See, अभी सेल हो गया गुडविल का, फर्म का जो गुडविल था वो अभी सेल हो गया. एंड द पार्टनर में एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द बायर. नो, अभी बायर के साथ वो एग्रीमेंट एंटर कर सकता है. दैट सच ए पार्टनर विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म. No, the partner will not carry. Third instant में the partner is not going to carry on the business which is similar to that of the firm. जो firm का business है, partner carry नहीं करेगा same business को, which within a specified period. तो specified period तक वो कुछ firm का business carry नहीं करेगा, और within a specified local limits, या फिर कुछ लोकल लिमिट्स है उसके हिसाब से वो बिजनेस कैरी नहीं करेगा. एंड व्हाट्स नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सच अग्रीमेंट शैल बी वैलिड. तो अग्रीमेंट वो वैलिड कहा जाएगा इफ द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज आर रीजनेबल. तो जो रेस्ट्रिक्शन डाला है वो रीजनेबल होना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी हियर द फोर्थ पॉइंट इज प्रोविजन रिलेटिंग टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर. सी, अगर ऐसी कोई प्रोविजन है रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, यानी जो पार्टनर दिवालिया घोषित किया गया है, यानी उसके ऊपर उधारी है, तो उसका क्या प्रोविजन है. इफ ए पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट और अदरवाइज कैनॉट पे हिज शेयर ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन, द सॉल्वेंट पार्टनर मस्ट शेयर रेटेबली द अवेलेबल एसेट्स. अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, जो सॉल्वेंट पार्टनर है, तो ही मस्ट शेयर द रेटेबली अवेलेबल एसेट्स. यानी एक पार्टनर के पास मान लीजिए 20,000 है, अभी एक पार्टनर के पास 1,000 वनली है, तो ये अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो कोई पेमेंट बाकी है तो सॉल्वेंट पार्टनर करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ ईच पार्टनर्स. ए बी सी, मान लीजिए ए बी सी, अभी ए पार्टनर इंसॉल्वेंट है, ही इज नेगेटिव, तो इन लोगों में कैपिटल है अभी, तो मान लीजिए इसके पास 2 लाख रुपया है और इसके पास 1 लाख रुपया है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ 2:1 दे विल शेयर द पेमेंट इंसॉल्वेंट पार्टनर को करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास तो अभी पैसा है ही नहीं है. ओके, द सॉल्वेंट पार्टनर मस्ट शेयर रेटेबली द अवेलेबल एसेट्स. जो अवेलेबल एसेट्स है इन लोगों के पास, दे शुड शेयर इट. That means the available asset will be distributed in proportion into the original capital. So the available here is, so the available assets will be distributed. जो assets है इनके पास, वो that will be distributed in proportion to their original capital. This is called the rule in Garner versus Moray. So यहाँ पे एक रूल बताया है Garner versus Moray. यहाँ पे G, M and W were partners in a firm.
where they agreed that profits are to be decided in equal proportion. यहाँ पे पहले ही डिसाइड किया गया है जो भी प्रॉफिट मिलेगा तो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा. In this case, capital was contributed in unequal proportion. तो द प्रॉफिट द कैपिटल जो कंट्रीब्यूट था वो अनइक्वल प्रोपोर्शन में था. ओके. The capital contributed by G was more than the capital contributed by M. यानी G ने कैपिटल ज़्यादा contribute किया था firm के लिए. But after the dissolution of a firm, it was observed that the assets, after satisfying all the liabilities to the creditors and advances of the partners, were sufficient to make repayment of the capital in full. तो जो कुछ लायबिलिटीज थी क्रेडिटर्स को तो एंड एडवांसेस ऑफ द पार्टनर वे सफिशिएंट टू मेक द रिपेमेंट. तो पूरा सफिशिएंट रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल इन फुल में दिया गया. नो अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द पार्टनर डब्ल्यू. ओके. तो कोर्ट ने इसमें क्या कहा? द ट्रू प्रिंसिपल ऑफ द डिवीजन वॉज दैट ईच पार्टनर इज टू बी ट्रीटेड एज लाइबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एन इक्वल थर्ड शेयर. तो जो भी कुछ फर्म में लॉस होता है, कुछ देनदारी होती है, तो इट इज ए लायबिलिटी ऑफ द थ्री पार्टनर्स ऑल्सो. तो डिविजन ऑफ द लेबर शुड बी इक्वल एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल. रीजन फॉर दिस इज दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल ऑफ डिफिशियंसी एंड देन अप्लाई द असेट. बाद में असेट को अप्लाई करना है इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन. रेटेबली यानी अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन हिज शेयर ऑफ द कैपिटल. सो हैंस the principle laid down is here is the solvent partner should contribute the deficiency of capital in cash. यानी इसमें रूल ये कहा गया है जो कोई इंसॉल्वेंट है वो पैसे देने के काबिल नहीं रहा है तो सॉल्वेंट पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन कैश. जो कुछ भी डेफिशिएंसी है कैपिटल की द सॉल्वेंट पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा. सेकेंड पॉइंट है द असेट देन अवेलेबल आर अप्लाइड इन पेइंग द पार्टनर्स रेटेबली. जो कोई भी असेट अवेलेबल है दैट शुड बी अप्लाइड इन पेइंग. वो अप्लाई किया जाएगा पेइंग करने के लिए पार्टनर्स रेटेबली यानी जो जिसका प्रोपोर्शन है उस हिसाब से पे किया जाएगा. तो व्हाट इज ड्यू टू देम इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैपिटल. So the ultimate outcome of these two principles is this: the deficiency of capital of the insolvent partner gets distributed among the solvent partner in the ratio of their capitals. Okay? जो कोई solvent partner है वो पे करेगा. इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो कोई डेट्स है वो सॉल्वेंट पार्टनर पे करेगा. So the limitation period here is the time span for filing a case in the court in regarding the settlement of the firm's account on its dissolution is 3 years. So 3 years के अंदर उनको फाइल करना पड़ेगा अगर आपको पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करना है. So okay, so we have completed here is dissolution of a partnership firm. Now next video we will be taking Limited Liability Partnership Act 2008. Okay.